Good morning, everybody. Good morning, Hello. sir. Hello. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Yesterday discussed regarding environmental issues. This chapter. This is last chapter of your syllabus, and second last chapter of the syllabus. We have to discuss also for term to examination. And in this pandemic situation, you know that condition, whenever it will be good or better for your, particularly for the students, then examination will be conducted as CBSE declared the date of the examination term to examination March, April, but it should be rescheduled due to COVID-19. आपको पता होना चाहिए कोविड-19 का जब ये हालत ठीक होगा तभी ये डेट ये होगा एग्जामिनेशन डेट आएगा, लेकिन उससे पहले हमको अपना पूरी तरह से प्रिपेयर होकर रहना है फॉर द टर्म टू एग्जामिनेशन. अच्छा, नेक्स्ट वन. Yesterday discussed regarding biological magnification. Biological magnification, accumulation of the harmful chemical substances. Accumulation of the harmful chemical substances in the lower trophic level and gradually increase in the higher trophic level is known as the biological magnification. ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का हम लोग बायो कॉन्सेंट्रेशन और बायो एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं. ओके, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेंट्रेशन nowadays whenever we are applying pesticides and insecticides in agricultural practices, this pesticide as well as insecticide are mainly after the rainfall drain into the aquatic body and finally mix up in the water, and water is consumed by algae and algae is consumed by birds, etc., fishes, then birds, etc., then food chain, and finally this pesticide is coming into our body with a huge concentration gradually increase. Question arise, why the concentration of the pesticide increase gradually? आप ये चीज है पता है, algae का बॉडी में जो pesticide का concentration होगा, fishes का बॉडी में उसका concentration ज्यादा होगा, और उसके बाद ह्यूमन बींग्स का बॉडी में concentration और भी ज्यादा होगा. Can you say the reason of the increasing the concentration of the pesticide, reason behind it? क्या कारण है जो? Because they are non-biodegradable, so they are transferred from one कौन trophic आंसर level दे to रहे हो? another. बोलिए, नाम बताओ, आपका नाम बताओगे, ठीक है? क्या कौन आंसर दिए हैं, नाम बताओ. हेलो, रिचा. हाँ रिचा, ठीक है. इट इज वेरी गुड बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. किसी का बॉडी में अगर होता है तो थ्रू आउट देयर लाइफ जितना पेस्टिसाइड स्टोर हो जाता है, डिकम्पोज नहीं होता है, इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. आपका एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम भी है. वाटर बॉडी में 0.003 ppm है, जू प्लैंकटन में 0.04 ppm है, स्मॉल फिश में 0.05 ppm है, लार्ज फिश में 2 ppm है, और फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 ppm है, और ह्यूमन बींग्स का बॉडी में उसका और भी बहुत गुना होता है जिसमें 240 ppm है. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट वन, यूट्रोफिकेशन. ये स्टार्ट डिस्कस किए थे. व्हाट डू मीन बाय यूट्रोफिकेशन? एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. हेलो, enrichment of the nutrients in the aquatic body is called eutrophication. Eutrophication का जो कारण है क्या होता है? enrichment of the nutrient. अगर मान लीजिए हम लोग फर्टिलाइजर whenever we are applying for the agricultural practices, वो धीरे धीरे ड्रेन होकर aquatic body में जाता है और it promotes the growth of the aquatic plant. aquatic plant का growth होता है तो naturally क्या होगा उसमें? aquatic plant का growth होगा तो naturally क्या हो जाएगा? वो दैट मीन्स उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में वो कम हो जाएगा. डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा और जो एक्वाटिक एनिमल्स वो सफोकेशन फील करेगा. नॉट दिस एरिया विल नॉट बी दैट मीन्स सुटेबल फॉर द सस्टेनिंग देयर लाइफ. इस कारण से डेथ हो जाता है. अच्छा, यूट्रोफिकेशन में एक चीज बताओ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक डेफिनेशन होता है. व्हाट इज बीओडी?
the amount of oxygen required for the microbial breakdown of biodegradable organic matter is called BOD, biochemical oxygen demand. The amount of oxygen required for the microbial breakdown of biodegradable organic substances is called BOD, biochemical oxygen demand. एक क्वेश्चन आता है, what is BOD? ठीक है, और it is higher in polluted water and lesser in drinking water. Biochemical oxygen demand जो polluted water में ज्यादा होता है और इसमें कम होगा, ड्रिंकिंग वाटर में कम होगा. ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी बुक में है. अच्छा, व्हाट इज एल्गल ब्लूम? हेलो, एल्गल ब्लूम कोई स्टडी किया है? एल्गल ब्लूम, व्हाट इज एल्गल ब्लूम? हेलो, एल्गल ब्लूम क्या है? एल्गल ब्लूम, domestic sewage contain nutrients like nitrogen and phosphorus which favors the excessive growth of the planktons. Planktonic excessive growth होता है due to eutrophication, इसको बोलता है algal bloom. अच्छा, name the terror of Bengal. Name the plant which is called terror of Bengal. इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ. जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ होता है, यूट्रोफिकेशन होता है. यूट्रोफिकेशन के बाद क्या होगा, पूरा जो वाटर बॉडी जो सरफेस एरिया ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाई करने के बाद पूरा डिटेल्स वहां पे क्या बोला, एक्वाटिक बॉडी जो है, एक्वाटिक बॉडी में जो एक्वाटिक एनिमल्स वो सफोकेशन फील करते हैं, पूरा सरफेस एरिया के कवर करते हैं. दैट मींस इट डिस्कनेक्ट द वाटर एंड द एनवायरनमेंट, दैट इज एटमॉस्फेरिक एयर. क्यों ना, एटमॉस्फेरिक एयर ही तो वाटर में डिजॉल्व होता है. अगर वाटर हाइसिंथ हुआ सरफेस एरिया को ऑक्युपाई कर लेता है तो नेचुरली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वाटर बॉडी एज वेल एज द एटमॉस्फेरिक एयर कट ऑफ, और धीरे धीरे क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा और उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स वो सफोकेशन फील करेगा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका, दैट मीन्स एल्गल ब्लूम मैन, वाटर हाइसिंथ का क्या ये है. अच्छा, वाटर हाइसिंथ का तो जो इल इफेक्ट है, बट हम क्लास में डिस्कस भी किए तो इसका कुछ फायदा भी है. नाउ-अ-डेज रिसेंट रिसर्च क्या बोलते हैं इसमें, नेचर्स किडनी उसका नाम दिया गया, पता है आपको? हेलो, नेचर्स किडनी हैवी मेटल्स को फिल्ट्रेट करता है. ठीक है, हैवी मेटल्स मीन्स मरकरी, कैडमियम एटसेट्रा, इसको फिल्टर करता है. ठीक है, तो नेचुरली इसको आजकल लेटेस्ट रिसर्च में इसको बोलते हैं नेचर्स किडनी. जैसे टेरर ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया, इसका तो इल इफेक्ट है बट पॉजिटिव इफेक्ट भी है. इसको आजकल नेचर्स किडनी, हैवी मेटल को उसमें ये किया. अच्छा, इसके बाद इकोसान क्या होता है? इकोसान, ECOSAN, इकोसान. इकोसान होता है जो बायो टॉयलेट्स which is developed in the area of Kerala and Sri Lanka, which is developed in Kerala and Sri Lanka for ecological sanitation, for ecological sanitation. That means बायो टॉयलेट का नाम दिया केरला में दिया गया और श्रीलंका में दिया गया, जिसका नाम है इकोसान. बायो टॉयलेट बहुत जगह आजकल इंडिया में हो रहा है बायो टॉयलेट, उसका याद रखोगे इकोसान. एक बार यही क्वेश्चन 2008 में एक क्वेश्चन आया था. मैंने एनसीईआरटी बुक में तो उतना डिटेल्स एक एक लाइन नहीं पढ़ा था, तब से हम बाद में स्टूडेंट्स हमको फोन किया बार ये इकोसान क्या होता है. बाद में देखा एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा हुआ, एक लाइन नहीं आधा लाइन में लिखा हुआ इकोसान अर्थात बायो टॉयलेट. ठीक है, तो ये कहाँ है? केरला में पहली बार, और उसके बाद आपका केरल में और श्रीलंका में. अच्छा, इसके बाद सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट, these are the discarded solid material which are produced due to the various human activities. A solid waste can be biodegradable, recycling and non-biodegradable also. उसमें क्या क्या चीज हो सकता है? सॉलिड वेस्ट जो हम लोग का रिलीज होता है, जिसको हम लोग डंप नहीं कर पाते, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? उसमें वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कलेक्टेड
and disposed by the municipality, which are generally consisted of papers, leather, textile, rubber, glass. हम लोग घर से भी जो वेस्ट मटेरियल बेचते उसमें सॉलिड भी होगा, हॉस्पिटल से भी आता है, स्कूल से भी आता है, ऑफिस से भी आता है, इसको बोलते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसके बाद इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्री क्या होता है, नाम सुने होंगे, हेलो हेलो, फ्लाई एश नाम सुने हैं? अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल से बहुत सारा। ई वेस्ट क्या बोलते हैं, इसी में कल मैंने कहा था, व्हाट डू मीन बाय ई वेस्ट? ई वेस्ट, ई वेस्ट मींस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। These are the damaged electronic goods, and these are the damaged electronic goods that is released from computers. इसको बोलते हैं ई वेस्ट। ओके, मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, क्या क्या मेथड है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए? ओपन बर्निंग, ओपन बर्निंग कर दिया जाए तो भी एक है। सैनिटरी लैंडफिल्स, एक जगह ले जाकर उसको डैम कर देना, सॉलिटरी लैंडफिल्स। उसके बाद कबाड़ी वाला, हम लोग जो है कबाड़ी वाला को दे देते हैं सॉलिड वेस्ट। घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, दिवाली का टाइम में हम लोग बेच देते हैं, देते हैं कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हेलो, हाँ। Yes, sir. तो कबाड़ी वाला सॉलिड वेस्ट को जैसे लिक्विड को तो हम लोग कहाँ कहाँ क्या करते हैं वो तो नहीं पता है, तो ड्रेनेज होके गंगा रिवर में जा रहा है। बट सॉलिड वेस्ट के क्या करते हैं, घर का बाहर में कहीं एक जगह है जो ऑफिस के बाहर में कभी कभी देखते हैं बर्निंग करता है, ओपन बर्निंग। सैनिटरी लैंडफिल, किसी एक जगह में कोई लैंडफिल में जाके उसको डैम कर देना है। तीसरा यह है जो कबाड़ी वाला को जो लेने के लिए आता है उसको दे देना है। उसके बाद क्या है, नेचुरल ब्रेकडाउन, एक गड्ढा खोल के उसका अंदर में इसको डाल देना, उसके बाद मिट्टी डाल देना, ये हो गया, इसको बोलते हैं नेचुरल ब्रेकडाउन। उसके बाद रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मीन्स बहुत सारा पेपर ऊपर होगा, बहुत सारा मटेरियल्स होगा जिसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। रिसाइकलिंग किया मीन्स उसको फिर से दोबारा कुछ रिसाइकल, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब तो जानते हैं। उसके बाद इंसर्नेशन, एक पर्टिकुलर होता है, मेजॉरिटी ऑफ द यूएस जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड इन एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर दे आर इंसर्नेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा डेवलप्ड कंट्री को इसको बेच दिया जाता है, वो लोग दूसरा कुछ बनाता है। रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल के लिए ए फाइन पाउडर ऑफ द रिसाइकलिंग मॉडिफाइड प्लास्टिक इज कॉल्ड पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड क्या है, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल modified plastic is called polyblend. Polyblend has been mixed with bitumen to lay road Bangalore, and polyblend enhance the bitumen's water repellent. ये जो polyblend जो बनाया गया, ये polyblend को bituminous के साथ, बिटुमिन का साथ अगर इसको मिक्स अप करके रोड जो बनता है, रोड का ऊपर में अगर इसको दे दिया जाता है तो इसको वाटर रिपेलिंग पावर हो जाएगा। ठीक है, इसमें रोड का लाइफ ज्यादा हो जाएगा। क्या क्या इसमें पॉलीब्लेंड का क्या यूज है बताओ तो फिर से एक बार। पॉलीब्लेंड होता है, रिसाइकिल प्लास्टिक को मॉडिफाई किया जाता है, उसको पॉलीब्लेंड बोलते हैं। द रिसाइकिल प्लास्टिक modified plastic is called polyblend. Polyblend, whenever it is mixed up with bitumen, if chemical is prepared and this chemical is used on the surface of the road, whenever road is made, construction of the road होता है, ऊपर में जो road का जो है ऊपर में दिया जाता है ये materials को, तब क्या होगा, जो बिटुमेन का साथ जो मिक्सअप होकर पॉलीब्लेंड जो मिक्स हो गया उसका वाटर रिपेलिंग पावर ज्यादा हो जाता है, और वाटर रिपेलिंग पावर ज्यादा होगा तो नेचुरली रोड का ऊपर में जल जमेगा नहीं, गड्ढा नहीं बनेगा, और जल नहीं, पानी अगर नहीं जमेगा उसमें तो क्या होगा ना, उसमें लॉन्ग लाइफ हो जाएगा रोड का। तो इस पर्पस में इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. हाँ, वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करके मॉडिफाइड फॉर्म बनाया जाता है जिसका नाम है पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड को बिटुमिनस का साथ मिलाया जाता है, उसको वाटर रिपेलिंग पावर बढ़ता है, केमिकल बनता है। उसको जब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड होता है उसमें क्या है ना, ऊपर में उसको दिया जाता है। तब क्या होगा, वाटर रिपेलिंग पावर है तो रोड जब बनता है तो उस पर पानी ये नहीं होगा, जमेगा नहीं। अगर पानी जमेगा नहीं, लाइफ ऑफ द रोड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन में definition naturally undesirable changes in the soil characteristics of the soil is known as soil pollution. Causes of soil pollution: chemical seepage from industry. किसी किसी इंडस्ट्री से केमिकल सब्सटेंसेस जो रिलीज होता है वो सॉइल को डैमेज कर देता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो नेचुरली वो सॉइल को डैमेज करेगा। दैट इज excessive use of pesticides and fertilizer, it can change the structure of soil. Soil become too much acidic or soil become too much alkaline, which is not fit for agricultural practices. तो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है सॉइल पॉल्यूशन में? नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर किल्ड। दैट मीन्स हम लोग का सॉइल में जो बहुत सारा important माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिस सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज वेरी मच गुड फॉर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वो भी खत्म हो जाता है। सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, सॉइल तो इनफर्टाइल होता है। पेस्टिसाइड्स कैन रिजल्ट इन बायोमैग्निफिकेशन, तो वो तो बायोमैग्निफिकेशन का तरफ से जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल मेथड सॉइल पॉल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नाम सुने ऑर्गेनिक फार्मिंग का? हेलो, Yes, sir. it Yes, is a sir. cyclical zero waste procedure where the waste product from one process are cycle nutrients in the other processes. एक न्यूट्रिएंट्स को दूसरा न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देना है, allowing maximum utilization of the resource and increasing the efficiency of production. प्रोडक्शन का एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देना है। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है रमेश चंद्र डागर, आपका एनसीईआरटी बुक में लास्ट चैप्टर में है। रमेश चंद्र डागर का नाम, व्हाई ही इज फेमस, इज मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेस इन हिज वर्क इंक्लूडिंग बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिट एग्रीकल्चर, चेन प्रोसेस। मान लीजिए बी कीपिंग कर रहा है, डेयरी मैनेजमेंट रहा है, एक का वेस्ट मटेरियल दूसरा में यूज किया जा रहा है, मतलब बहुत सारा मल्टी कल्चर किया जा रहा है। बी कीपिंग भी हो रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है, डेयरी टेक्नोलॉजी भी हो रहा है। एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ में जुड़ा हुआ है कि नहीं? एग्रीकल्चर जहां होगा वहां ग्रेजिंग होगा, ग्रेजिंग होगा तो उसमें क्या होगा ना, अगर मान लीजिए डेयरी टेक्नोलॉजी, गाय को रखा जाएगा तो उसका भी पेट भरेगा। नेचुरली मिल्किंग होगा, दूध या जो भी है, हाई यील्डिंग वैरायटीज मिल्क अगर रखा जाए तो उसमें मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। उसके बाद उसका काउडंग जो है उसका मैन्योर का रूप में काम फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में किया। इसी कारण से क्या है, एक फार्म में बहुत मल्टी टाइप ऑफ कल्चर, बी फार्मिंग हो गया, जहां एग्रीकल्चरल फील्ड है वह बी फार्मिंग भी हो सकता है, पेस्चर लैंड है तो वहां भी आपका बी फार्मिंग हो सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, कंपोजिटिंग एग्रीकल्चर एंड चेन प्रोसेस टू सपोर्ट ईच अदर। ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? रमेश चंद्र डागर, जो मल्टी मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस किया था। क्या नाम है साइंटिस्ट का? रमेश चंद्र डागर, DAGAR, आपका बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है, रमेश चंद्र डागर। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज किया आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज कैटल एक्सक्रीटा इज यूज एज। केमिकल फर्टिलाइजर उसमें वो यूज ही नहीं किया, क्यों ना, कैटल का जो एक्सक्रीटा है उसको यूज करता था। क्रॉप वेस्ट इज यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट, क्रॉप का जो रेसिड्यू बचता है उसको कंपोस्ट रूप में यूज किया जाता था, व्हिच इज यूज्ड एज नेचुरल फर्टिलाइजर, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज नहीं होता था। ठीक है, कंपोस्ट जनरेट्स नेचुरल गैस, अगर वो कंपोस्ट बनाता तो उसमें नेचुरल गैस जैसे मीथेन गैस रिलीज होता था, व्हिच इज यूज्ड फॉर द एनर्जी नीड्स ऑन फार्म। तो इस हिसाब से एक
कल्टीवेशन से दूसरा उसमें कन्वर्ट कर देता था वो। इस साइंटिस्ट का नाम है रमेश चंद्र डागर। इसके बाद आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैसे होता है? न्यूक्लियर एनर्जी से अगर मान लीजिए नॉन पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होता है उसमें क्या होगा ना, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होता है ना, कभी पाकिस्तान करता है, कभी इंडिया करता है, कभी दूसरा देश करता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होता है तो नेचुरली वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। अच्छा, एक कॉज क्या होता है? अनसेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। अनसेफ डिस्पोजल, तब रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा। और लीकेज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स फ्रॉम द पावर प्लांट। कभी कभी देखते हैं किसी पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज हो जाता है, उसके चलते बहुत आदमी का डेथ भी हो जाता है। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट, रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियर वेस्ट कॉजेज म्यूटेशन इन वेरी हाई। उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जनरेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होता है तो उसका जीन को डैमेज कर देता है, म्यूटेशन तुरंत होता है। और म्यूटेशन एक जनरेशन नहीं है, 2-3 जनरेशन 10 जनरेशन तक उसको सफर करना। जैसे हिरोशिमा नागासाकी जो हुआ था उसमें इंसिडेंट, उसमें आज भी जनरेशन सफर कर रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी पता है आपको? भोपाल में गैस मिथाइल कार्बाइड गैस जो रिलीज हुआ था 1985 या 84 में, उसमें ह्यूज नंबर ऑफ भोपाल में हुआ था, पता है आपको? यस सर। हाँ, मिथाइल भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीकेज हुआ था, उस गैस से बहुत आदमी का डेथ भी हुआ था, प्लस उसका जनरेशन आज भी सफर कर रहा है। म्यूटेट हो गया उसका, मान लीजिए अगर बच्चा हो रहा है तो उसको मेंटल रिटार्ड हो रहा है, देखने विजन लॉस हो गया, किसी का मेल न्यूट्रिशन है, तो मतलब वो एक जनरेशन नहीं है, बहुत जनरेशन तक वो सफर करते रहता है। ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव, डिस्पोजल रेडियो एक्टिव में क्या करना है? वेस्ट शुड बी प्री ट्रीटेड। उसको प्री ट्रीट करके फिर उसको डिस्पोज करना है, 500 मीटर नीचे तक उसमें अर्थ सरफेस में उसको डालना है, तभी वो डैमेज होगा। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके बाद है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द फेनोमेनन ऑफ द कीपिंग अर्थ वार्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें कौन कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस जो रिलीज हो रहा है, वो रिलीज होके हीटिंग कर रहा है अर्थ को, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेस का नाम है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC जो रिलीज हो रहा है, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है रिलीज होता है, और नेचुरली ये CFC एक मेन है। CFC इसका सोर्स क्या है? हम लोग घर में जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उससे भी होता है। ज्यादा से ज्यादा फोम अगर लेदर, जैसे मान लीजिए बहुत सारा साबुन से भी होता है। लेदर जैसे हम लोग सेविंग करते हैं, जो फोम क्रिएट होता है उसमें भी CFC रिलीज होता है। और जो हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं उसमें भी CFC रिलीज होता है। तो जनरली इसका सोर्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो रिलीजिंग होता है, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल, पेट्रोल पर्टिकुलरली, इससे होता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर राइज होता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या हो रहा है? जो सी का जो वाटर लेवल वो धीरे धीरे लैंड की तरफ से जा रहा है। ठीक है। तो उसका लेवल राइज हो रहा है, क्यों ना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस कारण से उसमें क्या होगा? पिघल के क्या होगा? ओशन का साथ आ रहा है और धीरे धीरे उसका लेवल, जो वाटर लेवल वो ज्यादा हो रहा है। वाटर लेवल ज्यादा हो रहा है तो कोस्टल एरिया में जो शहर है, पर्टिकुलरली द सिटी which are situated in the coastal area is called that means they are in danger condition। ठीक है ना। उसके बाद इफेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है?
ये तो हो गया आपका शहर का खतरा। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 इन लास्ट 3 डिकेड्स। टेम्परेचर अर्थ का ये नियर अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया, which leads to the changes in the precipitation patterns। ये हो गया। Rise in temperature leads to changes in the environment resulting in the odd climatic changes। क्लाइमेटिक चेंजेस चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेटिक चेंजेस, जिसमें वर्षा का दिन में दैट मीन्स रेनी डे का टाइम में रेनी सीजन में रेन नहीं होता है, विंटर का टाइम में उतना विंटर नहीं, समर का टाइम में उतना समर नहीं होता है, दूसरा टाइम में होता है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं E1 नीनो इफेक्ट। इसका नाम है E1 नीनो इफेक्ट। ये जो टेम्परेचर का जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। The rise in temperature will lead to the increase melting the polar ice cap, which will cause the rise of the sea level। तो मैंने डिस्कस किया था पहले ही, सी का लेवल जो राइज हो रहा है, तो कोस्टल एरिया में जो सिटीज है, these are in danger condition, ठीक है। इसके बाद आपका increase the temperature will lead to the increase the weed growth, eruption and disease the parts, the crop productivity decrease हो जाएगा इसमें। कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए? रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना नहीं, तो जूनियर क्लास में भी आप लोग स्टडी किए। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, एफोरेस्टेशन जिसको बोलते हैं। डिफोरेस्टेशन मींस काटना, एफोरेस्टेशन मींस प्लांटिंग करना। अच्छा, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? RE, रिफॉरेस्टेशन। हेलो, रिफॉरेस्टेशन किसी को पता है? हेलो, रिफॉरेस्टेशन मीन्स द planting of the trees in a particular area where the trees were occupied earlier। जिस एरिया में प्लांट था पहले, उसी एरिया को प्लांटिंग करना, जिसको बोलते हैं हम लोग रिफॉरेस्टेशन। यू विल रिमेंबर 3: एफोरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ओके, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये पर्टिकुलरली ये है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, ये भी हो गया। मेरा कहना है खाली LKG 1 2 में बनाना है 2 कमेटी ना, सब में 2 कमेटी बनाना है सब क्लास में। हमको तो लगता है 2 क्लास को एक कर दिया जाए। LKG UKG में एक बना दीजिए, बाकी 1 2 में, 3 4 में, 5 6 में वही ना 2 कमेटी बनाए। इससे अच्छा कि एक कमेटी बनाए सब में। नहीं, 2 क्लास को लेके बना दीजिएगा। टीचर ज्यादा दे दीजिएगा तो ठीक है, 3 ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, ओजोन डिप्लीशन। हेलो, Yes, sir. ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? द ओजोन लेयर, एक स्ट्रेटोस्फीयर लेवल होता है जिसमें ओजोन एक पर्टिकुलर लेयर है, प्रोटेक्ट द डिफरेंट UV रेडिएशन एटसेट्रा, उसको प्रोटेक्ट करता है। बट नाउअडेज क्या है ना, ये ओजोन लेयर डिप्लीट ड्यू टू पॉल्यूशन और थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। इसमें क्या होता है ना, जो हार्मफुल गैसेस वो डायरेक्टली ओजोन लेयर को छेद करके अर्थ पर आ जाता है। इसी कारण से क्या होता है ना, स्किन कैंसर, UV रेडिएशन का जो इल इफेक्ट बहुत सारा होता है। ओजोन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। ओजोन लेयर होता है कैसे? इसके बाद ओजोन लेयर ब्रेक डाउन होता है तो उसका डिप्लीट हो जाता है, थिनिंग होता है, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। इस कारण से वो डैमेज। कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन डिग्रेडेशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFC are refrigerants which react with UV stratosphere to release chloride atoms. Chloride atoms act as catalyst to degrade the ozone, release molecular oxygen. Finally molecular oxygen release होता है, लेकिन ओजोन का जो कंपोजिशन है वो ब्रेक डाउन होकर molecular oxygen रिलीज होता है।
and over the Antarctic region, there has been thinning of large area of Antarctica region में large area of ozone layer thinning हो गया, particularly Antarctica region, and this resulted in the formation of the ozone hole. तो ozone hole किस एरिया में है? Antarctic region में. उस एरिया में जो ओजोन का जो लेयर होता है वो लेयर पर्टिकुलरली उसको बहुत थिनिंग हो गया और उस एरिया को कहा जाता है मतलब ओजोन होल. हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है ओजोन का? यूवी डैमेज. यूवी डैमेज द डीएनए प्रोटीन्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजेस म्यूटेशन. ये यूवी रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है, रेडिएशन भी डैमेज करता है, नेचुरली म्यूटेशन क्रिएट करता है. सेकंड वन, इट कॉजेस द स्किन कैंसर, स्किन एजिंग, सेल डैमेज एटसेट्रा. यूवी रेडिएशन absorbed by human eye. अगर आई में ज्यादा यूवी रेडिएशन आता है, it causes the inflammation in cornea. Inflammation in cornea. कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन होता है, इसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस. शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्नो? On the eye and it causes the infection in cornea. Cornea इसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस. याद रहेगा, स्नो ब्लाइंडनेस, SNOW, स्नो ब्लाइंडनेस. Snow blindness, the infection in cornea due to UV radiation is called snow blindness. Control of ozone depletion. एक इंटरनेशनल पॉलिसी या ट्रीटी जो भी कहिए, इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. was signed at Montreal, Canada in 1987. Montreal Protocol जिसको बोलते हैं 1987 to curb the emission of the ozone depleting substances. More protocol have been laid down the controlling of emission of CSC. ये इसका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये है, उसका पीछे ये चीज है. 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था कनाडा में. उसका कारण था स्क्रब एमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. इसको कम करना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को एटमॉस्फेयर में कम करना है. लेकिन पॉलिसी बन जाता है, लेकिन उसको कम करने के लिए कोई देश कोशिश भी नहीं करता है. अच्छा, इसके बाद डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस. डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस. उसमें क्या है? सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन. सॉइल इरोजन अगर होता है तो डिजर्टिफिकेशन होगा. वाटर लॉगिंग होगा तो सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाएगा. किसी एरिया में वाटर लॉगिंग होगा तो उसका सैलिनिटी बढ़ जाएगा. डिफोरेस्टेशन, ये भी एक कारण है. दैट मीन्स डिफोरेस्टेशन इन आवर कंट्री, एक लार्ज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स एंड 1% फॉरेस्ट इन द टेम्परेट रीजन. 40% फॉरेस्ट लॉस्ट हो गया ट्रॉपिक एरिया में, 1% टेम्परेट रीजन में. तो ये इतना सारा जो लॉस है फॉरेस्ट का, उस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988. कौन साल में? 1988 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% forest cover the plains and 67% in the hills. 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में जो रिकमेंड किया, उसमें 33% फॉरेस्ट कवर किया था प्लेन में और 67% हिल रीजन में. कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन का कारण क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट. देखिए पटना हमारा स्कूल का तरफ से, हम जब स्कूल में ज्वाइन किए तो बहुत इसमें एग्रीकल्चरल लैंड था पूरा टोटली. बट नाउ इट इज सराउंडिंग द स्कूल्स ए नंबर ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एस्टैब्लिश्ड. ओके. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. ठीक है. फॉरेस्ट फायर, ये भी एक कारण है. ओवरग्रेजिंग बाय लिवस्टॉक्स. ठीक है. डिमांड फॉर वुड का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है. और क्या है? झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. आपसे एसएसटी में स्टडी किया ना? हेलो, झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन. Yes, sir. हेलो, झूम Yes, कल्टीवेशन
number, that means it is a type of ancient agricultural practices where the tribal area it practice mainly observed in the northeast hill region, particularly in case of the Nagaland, Manipur, Mizoram, etc. Hilly region, the tribal people, they cut and burn the plant and mix up the ash, mix up with the soil, and after cultivation they shift another area. एक फॉरेस्ट एरिया पैचेस को काटता है काटने के बाद उसको जलाया जाता है, जलाने के बाद उसमें उसको राग जो होता है, उसको एश जो होता है, उसको सॉइल में मिक्सअप करता है, उसके बाद खेती करता है, खेती करने के बाद फिर अगले साल दूसरा एरिया में शिफ्ट होके जाता है। तो इस हिसाब से फॉरेस्ट पैचेस को ये लोग लॉस्ट कर रहे हैं। तो ये इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ओके, अच्छा, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड concentration in atmosphere, loss of biodiversity due to habitat destruction, disturbances in hydrological cycle. Hydrological जो water cycle होता है, forest regulate water cycle हम लोग ये किया है। forest क्या है, regulate water कैसे? forest होता है तो naturally जिस एरिया में forest है वहाँ rainfall ज्यादा होता है। कारण क्या है? root से soil से plant root क्या करता है? water absorb करता है, वो ट्रांसपिरेशन के बाद इवापोरेट होके उस एरिया में कंडेंस होता है, कंडेंस होके जब गिरता है तो रेनफॉल होता है। तो इस कारण से फॉरेस्ट रेगुलेट वाटर साइकिल। जहां देखिएगा बहुत एरिया है जहां प्लांट पेड़ पौधा कम है वहां रेनफॉल भी बहुत कम होता है, ठीक है। जहां पेड़ पौधा ज्यादा है वहां रेनफॉल ज्यादा होता है, जहां दैट मीन्स फॉरेस्ट नहीं है वहां रेनफॉल कम होता है। सॉइल इरोजन में लीड टू द डिजर्टिफिकेशन। ओके, अच्छा, इसके बाद पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई सो द एक्सप्लेनरी करेज द हगिंग ऑफ ए ट्री, द ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्री। जोधपुर एरिया में पर्टिकुलरली एक एरिया है जिस एरिया में अमृता देवी बिश्नोई वो क्या किया था, वो प्रोटेक्ट किया था, ट्री को हाक करके पकड़ के वो किया था जो उसको कटने नहीं दिया। आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े। इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फॉर द रूरल एरियाज एंड सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। ओके, सो अमृता देवी बिश्नोई फर्स्ट टाइम प्रोटेक्ट और प्रिवेंटेड द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। इसके बाद को हो गया चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में कौन इन्वॉल्व है? इट वाज स्टार्टेड इन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन हिमालयस एरिया 1974 बाय क्या, हु इज फेमस फॉर चिपको मूवमेंट? सुंदरलाल बहुगुणा। टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, लोकल वुमेन hug the trees to prevent their cutting by the contractors. In 1990, the government of India was introduced the concept of the joint forest management